Hello students, welcome to the class 7th and welcome to the all students who are participating to seeing my videos, and I welcome to the also persons who are seeing my videos. So today I will start your new chapters, history and chapter 7, which name is mobile and settlements communities. So dear students, in this chapter I want to tell you about the settlements. In previous chapter means settlements, you know, the when early peoples were evolved on the earth, so that times they had started to staying and living together, but when they did not know anything, so they were living separately and not exact places, means they were searching in place of food and so on. But gradually when they learned everything, so they had settled and they had adopted the places where they want to live. So such type of conditions is known as also settlements. So in these chapters I will tell you about the some communities, and also I will tell you about the tribes and where they were lived, how they were lived, and what they had done in his life. So all things I will tell you within 10 minutes. So I requested to you, please listen to me carefully, that you could each and every points get very okay. So here is written settlements and communities. Here is written, students, communities. Communities means people's group. Communities means people's group are a persons which are lived in a group. This is known as communities. So here is written change in cost structure. In this chapter, first point is written here, change in cost structure. First of all, you know that when the cost was divided into four categories. The cost was divided into four categories in the Varna system, our caste system you can say. So on that time, the Kshatriya, Brahmana, Shudra and Vaishya, these were the four castes which were divided, and the Brahman remained the upper caste, you already know, and the Kshatriya, who were known as the battle or fight or warriors, and Shudra, who were the occupation like traders, Shudra, who were server, the three upper classes, and Vaishya, who were also the become the traders. So these four types of caste were divided, and these castes also were changed, and these castes were also changed during their occupations. So let us start how they have changed. कहने का मतलब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आपको ट्राइब्स के बारे में बताऊंगा. ट्राइब्स मतलब होता क्या है, ट्राइब्स मतलब होता क्या है. यहाँ ट्राइब्स मीन्स होता है a community or a group which move from one place to another place in search of food, cattle and livings. They were not live a fixed times and a same place. They migrate from one place to another place. Why they were migrated? Because they are search of water, food and settled. And why they migrated? You know, when suppose that here they had stayed, and they had stayed with their herders. Herder means cattle, and suppose that their grasses, that grasses were grazed by their animals. So why will they stay? Why will they stay? Because the grasses are grazed by the animals. So that's why they move to other places to search of new pastorals, new grasslands. कहने का मतलब स्टूडेंट्स, वे एक जगह से दूसरी जगह क्यों चेंज करते थे? क्योंकि जैसे आज वे यहाँ हैं अपने जानवरों को लेकर, अपने जानवरों को लेने के बाद फिर यहाँ से टाइम खत्म हो गया, यहाँ पे जो घास है
वो चर लिया गया उनके द्वारा, उनके जानवरों के द्वारा, तो फिर वे उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। उसी आदिवासी, उसी ट्राइब्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले कास्ट सिस्टम, 4 कास्ट थे, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण और वैश्य। क्षत्रिय योद्धा के नाम से जाने जाते थे, वॉरियर होते थे। ब्राह्मण सबसे अपर कास्ट में माने जाते थे, और जो शूद्र होते थे वे तीनों कास्ट की सेवा करते थे। वैश्य जो होते थे पेशे से आप ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे। तो अब इसी ट्राइबल्स में, इसी ऑक्यूपेशंस में इनका जो प्रोफेशन था इनका चेंज कर दिया गया और इनका नया कास्ट किया गया, नई जातियों के रूप में डिवाइड कर दिया गया। सो लेट अस सी हियर इज रिटन। यहाँ पे जातियों का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे जो जात के थे, जैसे वो हिंदू के थे, मुस्लिम के थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने काम के ऊपर अपनी जात को अडॉप्ट कर लिया। फिर जैसे कुछ बंजारा कम्युनिटी के हो गए, तो इसी बंजारा कम्युनिटी में जैसे लिखा गया है ट्राइब्स एंड ट्राइबल सोसाइटी। अब यहाँ पे ट्राइब्स और ट्राइबल सोसाइटी क्या है? ए ट्राइबल सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ए क्लोज नीट clans that are led by chiefs and are governed by the tribe's own land laws and tradition। जो ट्राइब्स पीपल रहते थे उनका अलग से रूल होता था, रेगुलेशन होता था, और उसमें एक चीफ होते थे, एक मुख्य होते थे। वे सबको क्या करते थे, गवर्न करते थे। जैसे आज के दिन में देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश को गवर्न करते हैं चीफ मिनिस्टर गवर्न करते हैं, और हमारे गवर्नर गवर्न करते हैं। तो इसी तरह से उनका भी जो ट्राइब्स होते थे, उनकी जो सोसाइटी होती थी, उसमें भी एक चीफ होता था जो सबको गवर्न करता था। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कुछ लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शंस ऑफ ट्राइबल्स एंड इनटू जनरल सोसाइटीज। अब ये ट्राइब्स पीपल कैसे जनरल सोसाइटी में आकर रहना चालू कर दिए। अब ये जो ट्राइब्स पीपल थे ये कैसे आकर जनरल सोसाइटी में रहना चालू, कहने का मतलब कि ये तो ट्राइब्स पीपल थे लेकिन ये आम लोगों की सोसाइटी में कैसे आना चालू कर दिए, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये पेशे से कुछ अलग अलग तरीके के हुआ करते थे। जैसे कोई वीवर हुआ करता था, कपड़े बुनने वाले, कोई बास्केट वीवर होता था, टोकरी बीनने वाला होता था, कोई क्लॉथ वीवर होता था, कोई फूड गैदरर होता था। तो ये सब क्या करते थे, अपना अपना जो कारीगरी होता था उसको शो करते थे, अपने टैलेंट को दिखाते थे, और हुआ टैलेंट आकर हमारे इस कम्युनिटी में जनरल सोसाइटी में फैला। क्योंकि उस हमारे जो समय में राजा महाराजा हुआ करते थे वे इनकी कलाकृतियों को देखकर यहाँ पे अलाउ के परमिशन दिए आम सोसाइटी में रहने के लिए। लेकिन कैसे रहते थे, जो उनका पेशा हुआ करता था, जैसे कोई कारपेंटर हुआ करता था तो वो कारपेंटर का काम करता था, कोई कोबलर हुआ करता था तो वह कोबलर वाला काम करता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्राइब्स पीपल हैं वह अपनी आम सोसाइटी में इसी तरह से रहना चालू कर दिए। और ये मोस्ट पेस्टोरल होते थे। यहाँ पे लिखा गया है ना कि देयर वाज ए लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स मोस्टली पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट ट्राइब। पेस्टोरल मींस होते थे जो अपने जानवरों को लेकर चरागाह में चराते थे। क्या करते थे, जो अपने जानवरों को लेकर चरागाह में चराते थे उन्हीं को पेस्टोरल बोलते थे। और फॉरेस्ट ट्राइब होते थे क्या, फॉरेस्ट ट्राइब मींस होता था जो जंगलों में, मींस क्या करते थे, जो जंगलों में अपने जानवरों को लेकर चराते थे उन्हीं को फॉरेस्ट ट्राइब्स बोलते थे। एंड इन मेडिवल इंडिया द खोखास एंड ढगास वर पावरफुल ट्राइब्स ऑफ पंजाब। यहाँ पे कुछ ट्राइब्स का नाम लिखा गया है, जैसे खोखस और ढगास थे, ये पंजाब के बहुत शक्तिशाली ट्राइब थे। उसके बाद द चेराज हु वर फॉरेस्ट ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार। और यहाँ पे जैसे जो चेराज हुआ करते थे वे हमारे, इनका जो नाम है ये हमारे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार की साइड के थे। यहाँ पे मैं कुछ ट्राइब्स कम्युनिटी का नाम बता रहा हूँ, जैसे घग्गर और खोखस थे, ये पंजाब के बहुत पावरफुल, इनका भी रूलिंग सिस्टम हुआ करता था, इनका भी रूलिंग सिस्टम हुआ करता था। तो ये पंजाब के माने जा सकते हैं ट्राइब्स, और ये उत्तर प्रदेश माने जा सकते हैं। कौन, जो चेराज होते थे। उसके बाद नेक्स्ट पे है द कोली ट्राइब्स। द कोली ट्राइब्स कंसिस्टेड ऑफ फिशरमैन। ये जो ट्राइब्स हुआ करते थे कोली ट्राइब्स, इनका ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, फिशरमैन हुआ करते थे, मछुआरा हुआ करते थे, यानी मछली मारने वाला काम करते थे।
बोटमैन होते थे, नाव को चलाने वाले होते थे, एंड सम वीवर्स होते थे। वीवर्स मतलब होते थे जो कपड़े बुनने वाले होते थे। तो उसके बाद हु लिव्ड इन कोस्टल कर्नाटक। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा गया है कोस्टल। कोस्टल मतलब होता है तटीय भाग। तटीय भाग में होता है जो समुद्र के बगल वाला जो एरिया होता है उसी को कोस्टल एरियाज बोलते हैं। तो ये जो कोली ट्राइब होते थे ये कर्नाटक के और महाराष्ट्र और गुजरात के ये तटीय भागों में रहते थे और इनका पेशा हुआ करता था मछली मारने वाला काम, नाव चलाने वाला काम और कुछ बुनाई कढ़ाई करने वाले होते थे। अब यहाँ पे चलते हैं नोमैडिक ट्राइब्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया है नोमैडिक ट्राइब्स। नोमैडिक ट्राइब्स मींस होता है मेनी ऑफ द नोमैडिक ट्राइब्स वर एनिमल हर्डर्स। जो नोमैडिक ट्राइब होते थे मतलब नुमायंद होते थे, बंजारा जिसको बोलते हैं, वे ऑक्यूपेशन से क्या करते थे, लगभग वे अपने बहुत बड़े बड़े जानवरों को लेकर, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ ये जो ट्राइब्स हुआ करते थे करीब एक बार में 10,000 से 20,000 जानवरों को लेकर निकल जाते थे चराने के लिए। सोचिए आज के दिन में लोग 2-4 जानवरों को लेकर जाते हैं चराने के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो कम्युनिटी वाले होते थे, ये जो ट्राइब हुआ करते थे 10,000 से 20,000 जानवरों को ले जाते थे चराने के लिए। क्या करने के लिए? जानवरों को ले जाते थे चराने के लिए। तो ये जो नोमैडिक ट्राइब्स होते थे ये पेशे से एनिमल हर्डर्स हुआ करते थे। दे एक्सचेंज एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज वूल, बटर और ग्रेन। ये नोमैड क्या करते थे उस समय? एक्सचेंज भी करते थे, सामान को अदला बदली भी करते थे। जैसे वूल, जानवरों का जो बाल निकालते थे काट कर उससे ऊनी कपड़ा बनाते थे, ये वूल चेंज करते थे। बटर जो मक्खन चेंज करते थे और जो ग्रेन होता था जो खेती करने के बाद। तो ये पेशे से जो ट्राइब होते थे ये इन सबका भी काम करते थे और ये हैंडमेड गुड्स भी बनाते थे। ये जो ट्राइब्स होते थे नोमैडिक, दे मेड सच एज रोप्स। हैंडमेड गुड्स, हैंडमेड मतलब जो हाथ से सामान को बनाते थे, जैसे रस्सी हो गया, बास्केट्स हो गया एंड मैट्स। और ये क्या करते थे? बना कर क्या करते थे? गांवों में जा जाकर बेचते थे। क्योंकि ये नोमैडिक होते थे। नोमैडिक का मतलब ये होता है कि जो घूम घूम कर विलेज टू विलेज क्या करते थे? घूम घूम कर सामान को बेचते थे। तो ये बनाकर गांव में ले जाकर बेचते थे जो नोमैडिक होते थे। क्लियर? अब यहां पर चलते हैं, फिर यहां पे लिखा गया है कि मैट्स वेयर यूजुअली सोल्ड बाय पेडलर्स। पेडलर्स मतलब होता था जो पैदल चलकर गांव में घूम घूम कर बेचते थे। फिर यहाँ पर लिखा गया है द गोंड किंगडम्स। गोंड किंगडम मतलब होता था ये गोंड एक कम्युनिटी होती थी, इनका राज्य, ये कैसे रहते थे। यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि गोंड किंगडम, द गोंड्स लिव्ड इन गोंडवाना व्हिच इंक्लूडेड द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड छत्तीसगढ़। ये जो गोंड ट्राइब्स होते थे जनरली आपके छत्तीसगढ़ यानी उत्तर का जो इंडिया का जो स्टेट है छत्तीसगढ़ और सेंट्रल पार्ट में ये गोंड किंगडम होते थे। इनका भी अलग तरीका होता था रहने का। फिर यहाँ पे लिखा गया है लास्ट यहाँ पे एहोम किंगडम। एहोम किंगडम मतलब द एहोम्स बिलोंग टू द सा ट्राइब्स चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये एहोम किंगडम होते थे सा ट्राइब से बिलोंग करते थे और बेसिकली ये चाइना और साउथ ईस्ट इंडिया में ज्यादा होते थे। अब यहाँ पे ये जितने भी ट्राइब्स होते थे एक पेक सिस्टम चलाते थे। पेक सिस्टम मतलब होता था वर्क फोर्स, एक सिस्टम बनाते थे। वर्क फोर्स मतलब सबको साथ में काम करने के लिए, उसी को पेक सिस्टम बोला जाता था। इनका अलग अलग रहने का तरीका होता था, इनका अलग अलग बोलियां होती थी, इनका खान पान अलग होता था। ये बेसिकली नॉन वेजिटेरियन हुआ करते थे। मोस्टली ट्राइब्स वर नॉन वेजिटेरियन बिकॉज अब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिवाइड कर दिया, लेकिन पहले तो वैसे ही थे क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में ओवरऑल हमने ये बताया आपको कि जो हमारे ट्राइब्स होते थे उनका जीवन कैसे वो जीते थे और कहाँ रहते थे। वे जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे चलते थे, जहाँ बारिश हो जाती थी फिर नीचे दूसरी जगह पे चले जाते थे। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में आपको
इनके सेटलमेंट के बारे में बताया, इनके ऑक्यूपेशन के बारे में बताया, इनके प्रोफेशन के बारे में बताया और कुछ ट्राइब्स की कैटेगरीज को भी बताया, नाम भी बताया, कहाँ पे वे रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में यही एक ही वीडियो बनेगा, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडे। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू अगेन, थैंक यू।